Namaste everyone. This is me, Shilpa Ramani. I welcome you all in this amazing evening with amazing people. So today we'll start. It's 555, magical number. Just close your eyes and make a wish quickly. Whenever you see these numbers, just make a wish and it will come true. So today we are here for your new journey. As everyone knows, today is a new moon day. So, there is some reason. It's not just coincidence that we are meeting. There is a reason that we are meeting. You are blessed. You all people are blessed that we are meeting here. I promise you at the end of the meeting you won't regret it staying for 2 hours, 3 hours, I don't know how many hours. So let's start. I will not start with what is numerology. I will give you the example here. I'll give you a small demo here how number works. What is the energy of numbers? So let's close your eyes. I request you all close your eyes and just calm your chaotic mind. Inhale slowly. Exhale. Inhale. Aware of your surroundings. Exhale. Now you have to make an intention because today is new moon. Make an intention and chant with me. We'll chant 3 Om chantings. Inhale. Om. 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 Now slowly you can rub your palms and put it on your face. Whenever you are comfortable, just open your eyes. So why we did this? How you are all are feeling now? Has your energy changed? So why we did this? So this is also, Om is universe. It's a divine energy. And Om, when you see what number is Om, Om is number 11. Your spiritual journey. So today you are going to start your spiritual journey. Let's see how your evening is going. I know the vibration has changed. Everything is changed now, and this is the magic of number. That's how numbers work. That's the magic numerology does. Sometimes it's very difficult. People, make them understand, wow, what is numerology. So numerology is an energy. Numerology is vibration. Numerology is very vast subject. Let's understand this subject a little. So I welcome you all. Namaste. Thank you for being here. Thank you so much for giving your important time Sunday evening. I have with me my colleagues, Mrs. Rakhi, Mrs. Runa, Mr. Santosh, and Mrs. Nisha. So let's start. So I am going to tell you a story about child, a story about child numerology. So आजकल ये होता है ना, जैसे ही आजकल ऐसा होता है जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है, पेरेंट्स आर वेरी वरिड अबाउट देम कि अब क्या होगा, जैसे ही बच्चा आएगा आगे क्या, वी शुड प्लान द चाइल्ड्स बर्थ अर्लियर. जैसे ही पता चलता है कि आपके घर में
एक नया गेस्ट आने वाला है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, न्यूमरोलॉजी नहीं होता था, तब भी तो सारी चीज़ें होती थी। आप लोग बहुत सही हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे न्यूमरोलॉजी के लिए, ऑकल्ट के लिए, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था। और हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, वो लोग ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट ही थे। नोइंगली और अननोइंगली उनको ना हमारी मदर्स को सारा नॉलेज हुआ करता था। कहीं ना कहीं हमारी मॉम सारा टाइम हमारे वेलबींग के लिए, हमारे स्टार्स को कुछ ना कुछ, हमारे स्टार्स हमारे नंबर्स को एनर्जाइज करते ही रहते थे। आप लोगों के घर में अमावस्या के दिन मदर्स कुछ ना कुछ किसी को देते होंगे, मैंने तो यही देखा है, मैं तो यही देख के बड़ी हुई हूँ कि अगर अमावस्या है तो घर से किसी को कुछ देना, अगर और कुछ घर की हाउस हेल्प को खाना खिलाना, क्या होता है इन सब से? कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने नंबर्स को एनर्जाइज कर रहे हो, उनको सही डायरेक्शन दे रहे हो आप अपने नंबर्स को, अपने प्लैनेट्स को। व्हाट इज नंबर? नंबर इज प्लैनेट। अगर मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ, अगर हमारा ये सेमिनार एक 8 साल का बच्चा भी देख रहा है या एक 80 इयर्स का कोई ओल्ड मैन भी देख रहा है, उनको भी ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज है, आई एम नॉट यूजिंग एनी टेक्निकल टर्म्स हियर। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, न्यूमरोलॉजी इज अ मैप। दैट मैप हैज बीन गिवन बाय गॉड विथ योर डेस्टिनेशन। उन्होंने आपको एक मैप दिया है आपके डेस्टिनेशन के साथ, बट यहाँ पे सस्पेंस ये है, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने वो लैंग्वेज आपको नहीं बताई है कि उन्होंने आपका मैप किस लैंग्वेज में लिखा है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिकोड द लैंग्वेज। सारे आईटी को लोगों को पता है कि डिकोडिंग कैसे करने का है, तो आपको डिकोड करना है आपके मैप को। अब ये डिकोडिंग कैसे होगी? ऑब्वियसली डिकोडिंग तब होगी जब आप किसी सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी मोडालिटी के पास आप जाते हैं, तब ये लैंग्वेज डिकोड होता है। तब आपको पता लगता है कि आपके मैप में क्या लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देखते हैं, आप सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कुछ आता भी है तो हो सकता है कि आपके पास कंप्लीट जानकारी ना हो उस चीज की। इसके लिए आपको सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना इज मैंडेटरी। बिकॉज अगर मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो किचन में जो आप रेसिपी बनाते हो, वो आप जो किचन में शेफ होता है या जो हमारी मदर्स होती है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या बनाते हैं। सिर्फ सॉल्ट और ऑयल से कोई रेसिपी नहीं बनती है, हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। हमको पता रहता है ऑनलाइन, सिर्फ हमको 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स ही पता होते हैं। और आपको तो पता ही है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो कुछ भी ट्राई करने से पहले गो टू अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, कंसल्ट कीजिए। अगर इफ यू आर फुल्ली कन्विंस्ड तभी आप आगे बढ़िए, अदरवाइज डोंट गो फॉर योर फर्दर कंसल्टेशन। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि ड्राइवर क्या है, कुआं क्या है, कंडक्टर क्या है, आप सब जानते हैं ड्राइवर क्या है, कुआं क्या है, कंडक्टर क्या है, लोशो ग्रिड क्या है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये सारा नॉलेज है तो बैठिए अपने न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ, पूछिए उससे बहुत सारे क्वेश्चंस। आपको आप पूरे क्वेश्चंस पूछ के फिर आगे बढ़िए। नाउ कम टू द पॉइंट, चाइल्ड न्यूमरोलॉजी। तो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी क्या होता है? अगर आपकी फैमिली में कोई एक्सपेक्टेड है तो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी के लिए हाउ वी कैन टेक द डेट्स फॉर सी सेक्शन। तो होता ये है, जब आपको पता चलता है कि आपके घर में बच्चा आने वाला है, तो आपको फिर से अगेन यू हैव टू सिट विथ अ न्यूमरोलॉजिस्ट, यू हैव टू सी द प्राइमरी चार्ट ऑफ द फादर, प्राइमरी चार्ट ऑफ द मदर, फिर आपको उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर लेके हम सी सेक्शन की हम लोग चाइल्ड के सी सेक्शन की डेट फाइनलाइज करते हैं। दैट रेंज ऑफ डेट्स डॉक्टर्स विल गिव यू।
आप उनसे बात कर सकते हैं। और जरूरी नहीं हो कि सी सेक्शन ही हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। कभी कभी कुछ चीजें ना हमारे हाथ में नहीं होती है, तो उसके लिए अब हमको क्या करना है कि अगर सी सेक्शन हो रहा है तो यू कैन डिसाइड अ डेट विद अ न्यूमरोलॉजिस्ट। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठिए जिसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आप सी सेक्शन की डेट डिसाइड कर सकते हैं। एंड इफ इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी देन इन दैट केस यू कैन डिसाइड द नेम ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि आपके बच्चे की लाइफ में उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो उसको करियर में आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी चीजें हमको हमारे मदर और फादर ने बहुत अच्छे से दी है। क्योंकि अभी मैं बहुत सारे क्लाइंट्स का चार्ट्स भी देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का लोशो ग्रिड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 या 3 नंबर्स भी है ना, तो ये मैजिक होता है कि उनका नाम बैलेंस होता है। कभी कभी कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि सारा कुछ है चार्ट में फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? मैं आंसर दूंगी, इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, अंबानी, टाटा, बहुत बहुत एंड नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल आप सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन अंबानी, टाटा अपने नंबर्स को एनर्जी देते हैं। इट इज नॉट दैट नोइंगली दे आर डूइंग और अननोइंगली दे आर डूइंग। मुझे नहीं पता कि नोइंगली कर रहे हैं या अननोइंगली कर रहे हैं। अंबानीज के, टाटास के कितने ट्रस्ट चलते हैं, वो लोग कितना डोनेशन करते हैं, वो कितने अच्छे डीड्स करते हैं। आप जाके देखिए टाटा के ट्रस्ट, हम लोग उनकी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी करने के बाद आपका पाथ एकदम इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम्स कैसे आके निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम कैसे निकल गए, हमको क्यों समझ में नहीं आया। दैट्स द ब्लेसिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। यही होता है इन सब लोगों के साथ। अंबानी की बात बहुत करते हैं, उनके नंबर्स की बात बहुत करते हैं, उनके संस्कारों की बात कभी नहीं करते हैं हम लोग। उन्होंने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं, शायद ही आपको, और मतलब बच्चों को संस्कार सभी अच्छे देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिखते बहुत कम लोगों में है। अगर हम बार बार अंबानी की बात करते हैं तो हम अनंत अंबानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसका आप इंटरव्यू देखिए, उसमें कितनी ज्यादा इंसानियत भरी हुई है। उसने उपनिषद पढ़े हुए हैं। हार्डली आज हमारे पास टाइम है भगवत गीता भी पढ़ने का। तो नंबर्स के साथ साथ, नंबर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। बट साथ में आप कैसे करेंगे उसको एनर्जाइज करके, बहुत सारी रेमेडीज करनी पड़ेगी, बहुत सारी नहीं, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो आपकी मदर्स किया करती थी, जो हमारे ग्रैंड मदर्स किया करते थे, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स आराम से निकल जाते थे, शांति होती थी उन सब लोगों की लाइफ में, क्योंकि वो लोग डोनेशन रेगुलर बेसिस पे करते थे। गाय की रोटी हर घर में निकलती थी पहले। मुझे नहीं लगता है कि आज 50% घरों में भी गाय का रोटी निकलता है। आज अमावस्या है, कितने घरों में से खाना निकला। इन सारी चीजों से हमारे नंबर्स एनर्जाइज होते हैं। हम सही डायरेक्शन में अपने नंबर्स को एनर्जाइज करते हैं, इससे जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है वो प्रॉब्लम्स कम होती है। ठीक है, अभी तो काफी बिजी लाइफ है, अभी की लाइफ में ये सारी चीजें करना मुश्किल है, बिकॉज मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग। तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम हम लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करवा सकते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट, सी सेक्शन। तो सी सेक्शन में ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर आप डेट्स देगा, उसमें से यू हैव टू टेक अ बेस्ट डेट फॉर योर चाइल्ड। आपको नहीं करना है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट को करना है क्योंकि आप करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ और हो जाए। प्लीज गो टू योर न्यूमरोलॉजिस्ट और कंसल्ट अस। हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ 2 मिनट का काम, ये मैगी नहीं है कि 2 मिनट में पक जाएगा। आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे और ये शायद डेट्स आपको मिल जाती हैं 1-2 मंथ्स पहले, तो आपको उस टाइम पे आपके न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। देन
न्यू लाइक उसके बाद ऐसा होता है, एक बार डेट्स कंफर्म हो जाने के बाद जब डिलीवरी हो जाती है उस टाइम, यू नो, आई नो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपको एक एक न्यू सोल हैज कम ऑन द अर्थ with the map and the destination. अगेन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसमें भी हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम उसके लिए नेक्स्ट नेक्स्ट वर्कशॉप लेंगे। लेकिन उसमें भी हमारे नामकरण संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से होता है एक नामकरण संस्कार। तो 16 संस्कार होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग का पूरा कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल। सो वन ऑफ द संस्कारा इज नामकरण संस्कारा। अब नामकरण, नामकरण में आजकल जो मुझे देखने के लिए मिलता है, लोग एक एक महीने तक बच्चों का नाम नहीं रखते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। बच्चों का नाम विद इन 15 डेज में रख लेना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ जगह पे 6 दिन में नाम रखा जाता है, कुछ कहीं पे 15 दिन में रखा जाता है, कहीं पे 11 डेज में रखा जाता है। I don't know about your community, but in our community, they, you know, keep name within 6 days. 6 डेज में नाम रखने का भी वो होता है कि आपका बच्चे का नाम डिले नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको हमको डिले नहीं करना। जितना आप बच्चे का नाम डिले करते हैं रखना, उतना तकलीफ उसको होता है। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, आपको नहीं पता कि बच्चा एक हो, बच्चा इतना भी बड़ा हो या हम अडल्ट हो, जितनी तकलीफ जितनी प्रॉब्लम चीजों में मेंटली फिजिकली हमको होती है, उतना ही बच्चे को भी होती है इमोशनली। तो आपको, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू कीप योर बेबीज नेम विद इन 6 days एंड नॉट देन 11 days। मेरे कुछ यूएस के भी क्लाइंट्स हैं, तो वहां पे तो ऐसा होता है ना, अगर आपने बच्चे का नाम 12 घंटे में नहीं रखा तो आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलता है। अगर आपने हॉस्पिटल में बच्चे का नाम नहीं बताया तो यू वोंट गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो दे हैव टू कीप द नेम इन बिटवीन, लाइक इन विद इन 12 आवर्स का विंडो। तो यहाँ पे भी आपको बच्चे का नाम 5 to 6 days में फाइनलाइज करना है। अगेन, सिट विथ योर न्यूमरोलॉजिस्ट, see what name suits him, what is the best name for his future, his career, his studies। आपको सारा कुछ देखना है, उसके बाद ही बच्चे का नाम यहाँ पे आपको फाइनलाइज करना है। वन मेन थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, you don't have to keep pet name and main name separate. That is the main point here। जब आप ये करते हैं ना, अपने बच्चे का नाम पेट नेम और मेन नेम अलग अलग रखते हैं, तो 2 प्लैनेट्स उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड नोइंग अननोइंगली यू आर डूइंग इट विथ योर चाइल्ड। दोनों प्लैनेट की एनर्जीज अलग होती है, फिर बच्चे को इमोशनली स्पिरिचुअली बहुत ब्लॉकेजेस आते हैं लाइफ में। तो यू डोंट हैव टू डू दैट। अभी रिसेंट में ही अनुष्का शर्मा का बेबी हुआ है, तो यू कैन, मैं यहाँ पे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स नहीं दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट कि उसका बेबी किस डेट को हुआ है, उन्होंने क्या डेट सिलेक्ट करी है, या उनका बेबी का नाम का भी उन्होंने काफी अच्छे से ही पहले से ही प्लान करके रखा था। शायद उन्होंने विद इन 2 days प्लान कर लिया था बेबी के नेम को। तो आजकल ये सारा कुछ प्लान होता है, आप लोग भी इस सबको प्लान कीजिए। बेबी का पेट नेम आपको नहीं रखना है, यू हैव जस्ट, आप कहीं पे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, उससे आपका बच्चा बहुत प्रॉब्लम्स फेस करता है फ्यूचर में भी। देन उसके बाद अगर हमारे पास ये साइंस है, वी हैव न्यूमरोलॉजी, सो वी कैन, यू नो, वी शुड ऑलवेज यूज द यूज न्यूमरोलॉजी इन अ राइट वे। इसके बाद क्या आता है, बच्चे का नाम भी रख लिया। अब बच्चे का नाम इस तरीके से रखना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा हो, उसके पेरेंट्स, आजकल का सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही होता है कि बच्चों और पेरेंट्स की बनती नहीं है, यू नो, दे डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स। तो उसके लिए भी आपको आपके न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के अकॉर्डिंगली वी कैन प्लांट अ नेम फॉर योर बेबी। देन हम आगे चलते हैं कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है,
2 साल का, 3 साल का होता है, देन नॉर्मली जो मेरे पास क्लाइंट्स का प्रॉब्लम जो नॉर्मली आता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चा सुन नहीं रहा है। सो अगेन आई कैन शेयर वन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट्स विथ यू। ये मेरी हाउस हेल्प है जिसका एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। सो वन डे शी केम टू मी इन द इवनिंग एट 8 o'clock एंड शी वॉज क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग कि मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती हैं कि मेरा बेटा भाग गया एंड ही इज ओनली 14 years ओल्ड। वो 8 घंटे से घर नहीं आया था। अब क्यों नहीं आया था, और इनको तो पता भी नहीं है, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल ना, उनको क्या पता न्यूमरोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। लेकिन शी वॉज इन लाइक उसका इतना ज्यादा फेथ था क्योंकि वो मुझे सुनती रहती है जब मैं अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन देती हूँ। तो उसने कहा दीदी आप वो पेन से वो जो बनाते हो वो टेबल बनाओ ना, तो पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। शी मीन टू से दीदी न्यूमरोस्कोप बनाओ उसका। तो उसके बाद जब मैंने उसका देखा वहां पे, इतना जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर, तो इट इज अ एडेड बेनिफिशियल फॉर बेनिफिट फॉर मी। तो मैंने उसका टैरो से जो भी उसको रेमेडी देनी थी मैंने दिया उसको रेमेडी। हिज सन वाज लाइक 4 नंबर बॉर्न था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है नंबर 4 वालों को। तो उस दिन तो उसका बेटा आ गया था रात में, लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं पता है। वो हार्डली मुझे लगता है सेकेंड या थर्ड क्लास पढ़ी भी होगी, लेकिन शी स्टार्टेड फॉलोइंग द रेमेडीज और दिल से, मतलब जो भी रेमेडीज उसने फॉलो करना स्टार्ट किया ना, एकदम दिल से स्टार्ट किया। नाउ शी इज हैप्पी। ऐसा नहीं है कि उसका बेटा तो एकदम उसके बातों पे अब चलता है, लेकिन अब दिक्कत कम आती है उसकी लाइफ में, शी इज वेरी हैप्पी विद दैट। तो द कंक्लूजन ऑफ दिस इज कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। द बिगेस्ट फैक्टर इज फेथ। आप अगर जा रहे हैं कहीं पे भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, यू शुड हैव लिटिल फेथ कि हाँ अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपकी चीजें सही होगी ही। सो नाउ मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, आपका टाइम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। होप यू हैव एंजॉयड दिस चाइल्ड न्यूमरोलॉजी। मुझे पता है मैंने टेक्निकल तो बहुत कुछ नहीं बताया बिकॉज यू हैव टू कम टू अस फॉर टेक्निकल थिंग्स क्योंकि हम इसलिए भी क्योंकि वी हैव बीन स्टडिंग दिस सब्जेक्ट फॉर सो लॉन्ग। तो मुझे लगता है कि इसको बैठ के समझना आपके लिए ज्यादा अच्छा है रादर देन यहाँ पे मैं आपको लोशु ग्रिड बताऊं। मैं आपको वो सबको आता है, बेसिक बेसिक यहाँ पे मुझे लगता है सारे लोगों को आता है, सारे नंबर्स की क्वालिटीज, पर फिर भी